نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے کہ یہ کافر اپنی نگاہوں سے، اپنی نظروں سے، اپنی بصارت سے آپ کو بہلا اور پھسلا نہ دے۔ جب بھی یہ قرآن کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ دیوانے ہیں۔ اہل علم اس آیت کی تفسیر میں، یا اہل علم اس آیت سے ایک نقطہ نکالتے ہوئے کہتے ہیں کہ کافر اپنی بری نظر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ الحمد للہ الذی بتحمیدہ یستفتح کل کتاب وبذکرہ یصدر کل خطاب وبحمده يتنعم أهل النعيم في دار الثواب وباسمه يتسلى الأشقياء وإن أرخى دونهم الحجاب وضرب بينهم وبين السعداء بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ونتوب إليه توبة من يوقن أنه رب الأرباب ومسبب الأسباب ونرجوه رجاء من يعلم أنه الملك الرحيم الغفور التواب ونمزج الخوف برجائنا مسجما لا يرتاب أنه مع كونه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ونصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صلاة تنقذنا من حول المطلع يوم العرض والحساب وتمهد لنا عند الله زلفى وحسن مآب. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو ہم اور آپ گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، جمع کرنا چاہیں تو جمع نہیں کر سکتے۔ خود اللہ رب العالمین اس بات کی گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو جمع کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لاکھوں قرون و درود کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اطاعت جنت میں لے جانے کا سبب ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نافرمانی جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی، جن کا نام اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے میں جس عنوان کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ گزشتہ جمعہ سے منسلک بری نظر کی حقیقت، نظر بد کی حقیقت اور اس کا علاج۔ برادران اسلام، گزشتہ جمعہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے آپ لوگوں کے سامنے نظر بد کے ثابت ہونے اور اس کی حقیقت کو واضح کیا تھا کہ بری نظر واقع ہوتی ہے جس سے انسان کا جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے۔
वहीं आप लोगों के सामने इस बात का भी तज़किरा किया था कि उन बुरी नजर के अलामात और असरात जो है क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इस बात की तरफ भी मैंने इशारा किया था कि हर चीज को लेकर बुरी नजर के पीछे पड़कर परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो आदमी, वो इंसान जिसका अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा कम होता है, वही जो है इसमें ज्यादा पड़ता है। वो इंसान, वो आदमी जिसका तवक्कुल और भरोसा अल्लाह रब्बुल आलमीन पर मजबूत होता है, जिसका अकीदा और ईमान जितना ज्यादा मजबूत होता है, उतने ही वो कम जो है शक व शुबे में पड़ता है। लेकिन चूंकि नजर बद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है नजर बद लगने वाली है, लिहाजा इसका जो है इलाज भी कराना चाहिए। तो मेरे भाइयों, गुज़िश्ता जुमा नजर बद के साबित होने और उसके अलामात को आपके सामने मैंने बयान किया था। अब आइए आपके सामने किन लोगों की या किन चीजों की नजर लगती है उसकी वजाहत करता चलूं। सबसे पहले ये बात याद रखिए कि इंसान की नजर इंसान को लग सकती है, जिसके दलाइल अहादीस मुबारका में मुतअद्दिद है। गुज़िश्ता जुमा भी मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया था कि एक सहाबी की नजर दूसरे सहाबी को लगी, इसी तरह बाज बच्चों को नजर जो है लोगों की लगती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जिक्र करते हुए कहा, वइयकादुल्लज़ीना कफरू लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र वयक़ूलूना इन्नहु लमजनून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करीब है कि ये काफिर अपनी निगाहों से, अपनी नजरों से, अपनी बसारत से आपको बहला और फुसला न दे। जब भी ये कुरान को सुनते हैं तो कहते हैं कि आप दीवाने हैं। अहले इल्म इस आयत की तफसीर में, या अहले इल्म इस आयत से एक नुक्ता निकालते हुए कहते हैं कि काफिर अपनी बुरी नजर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही इस बात की तरफ इशारा कर दिया। तो मालूम ये हुआ, बात अहले इल्म कहते हैं कि जो लोग दीन इस्लाम पर अमल करने वाले हैं, अच्छी तालीम हासिल करने वाले हैं, बुरे लोगों की नजरों से, बदनजरी से वो नुकसान उठा सकते हैं, वो अमल में पीछे हो सकते हैं, या उनके इल्म में कमी आ सकती है। वजह क्या है? बुरी नजर की वजह से। तो मेरे भाइयों, इंसान की नजर इंसान को लग सकती है। यही वजह है कि गुज़िश्ता जुमा मैंने आपके सामने जो है इस बात का जिक्र किया था, जब भी आप अपने भाई में कोई अच्छी चीज देखें, जब भी आप अपने भाई को कोई अच्छी चीज खरीदते हुए देखें, उसका घर, उसकी बैंक बैलेंस है, उसकी गाड़ियां, उसका खेत, उसकी जमीन, जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बारकल्लाह, अल्लाह इसमें बरकत है, इस तरह जो है दुआ देने की कोशिश करें। तो मेरे भाइयों, जहां इंसान की नजर इंसान को लगती है, वहीं जिन्नात और शयातीन की नजर भी इंसान को लग सकती है। इसके लिए पहले ही मैं बता दूं कि शरीयत ने, इस्लाम ने, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान और जिन्नात के शर से बचने के लिए कुरान में जिन आयतों का जिक्र किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अहादीस को सिखाया है, उन्हें पढ़ते हुए अपने आप को उनके शर से महफूज रखे। कहीं ऐसा ना हो नमाज की पाबंदी नहीं, दुआओं का एहतमाम नहीं, जब बुरी नजर लग जाए या जिन्नात का असर हो जाए या जादू का असर हो जाए तो परेशान होकर इधर उधर फिरने लग जाते हैं, जबकि इसका इलाज कुरान और हदीस में मौजूद है। जिन्नात की नजर इंसान को लग सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जिक्र करते हुए कहा, वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन्न, और इसी तरह हमने हर नबी के लिए इंसानों, जिन्नों और शैतानों में से दुश्मन बनाया है, और एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए तो कभी पीछे नहीं हटता, हत्तल इम्कान वो कोशिश करता है कि उसे अपने दुश्मन को नुकसान पहुंचाए। यही वजह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना शैताना यजरी मिनल इंसानी मजरद दम, बेशक शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है।
خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا سُوءًا أَوْ قَالَ شَيْئًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے یا تمہارے دل میں کوئی بات نہ ڈال دے، کیوں؟ نقصان پہنچانے کے لیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سورہ ناس میں جہاں مخلوق کے فتنے اور شر سے محفوظ رہنے، پناہ طلب کرنے کی آیتوں کو ذکر کیا ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے کہا من الجنۃ والناس، کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں جنوں اور انسانوں کے شر سے کہ وہ جو ہے نقصان پہنچائے۔ تو میرے بھائیوں، معلوم کیا ہوا؟ جنات اور شیاطین بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نظر کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم، کہ بنی آدم کی شرمگاہ اور جنوں کی آنکھوں کے درمیان کا پردہ یہ ہے اذا دخل احدهم الخلاء، جب بھی وہ بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے ان یقول بسم اللہ، تو داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا کا اہتمام کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتا دعا کا اہتمام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کے شرمگاہ کے درمیان کا پردہ، میرے بھائیوں، دعا پڑھنا ہے۔ دعا پڑھ کے ہم داخل ہوتے ہیں تو جنات کی بری نظر جو ہے ہمارا کوئی جو ہے نقصان، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ بے شک میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری، کس سے؟ خبیث جنوں اور جنیوں سے۔ تو میرے بھائیوں، انسان جب بیت الخلاء میں جاتا ہے اور جا کر دعا کا اہتمام نہیں کرتا تو جنات اور شیاطین کا اس کے اوپر اثر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جہاں انسان کی نظر لگ سکتی ہے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، جہاں جنات کی نظر لگ سکتی ہے وہیں ہمیں جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، وہیں جانوروں کی نظر بھی انسان کو لگ سکتی ہے۔ جی، جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زہریلا سانپ ہے وہ بھی خصوصاً انسان کو نظر لگا کر ہلاک اور برباد کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا اقتل الحیات، زہریلے سانپوں کو قتل کرو، والتفیتین والابتر، دو لکیروں والے سانپ اور دم کٹے سانپ کو جو ہے قتل کرو، فإنہما یستسقطان الحبل، اس لیے کہ یہ عورت کے حمل کو گرا دیتے ہیں، ویلتمسان البصر، اور انسان کی نگاہوں کو، انسان کی بصارت کو ختم کر سکتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ زہریلے سانپ کی نظر اس قدر بھیانک ہوتی ہے کہ وہ انسان کو ہلاک اور برباد کر سکتی ہے اور عورت کے حمل کو گرا سکتی ہے اور اسی طریقے سے انسان کی بصارت کو زائل کر سکتی ہے۔ تو لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح 3 مرتبہ، شام 3 مرتبہ اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں تو اسے مخلوق کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرے بھائیوں، جہاں زہریلے سانپ کی نظر لگ سکتی ہے وہیں کتے وغیرہ کی بھی جو ہے بری نظر لگ سکتی ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں ان الکلاب من الجن، بعض کتے جو خصوصاً کالے کلر کے ہوتے ہیں، بعض کتے جنات اور شیاطین میں سے ہوتے ہیں، فَإِذَا غَشِيَتِكُمْ عِنْدَ طَعَامِكُمْ، جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہو اور کتا وہاں موجود ہو، فَأَلْقُوا لَهُنَّ، تو اپنے کھانے میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کر اسے ڈال دینا، اپنے کھانے میں سے اٹھا کر ایک لقمہ اسے ڈال دینا، فَإِنَّ لَهُنَّ أَنفُسًا، اس لیے کہ اس کی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟
जानवरों की नजर भी लग सकती है। लिहाजा जब भी हम खाना खा रहे हो, कहीं भी घर में खा रहे हो, होटल में खा रहे हो, चौरस्ते पर खा रहे हैं, तो दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। दुआ नहीं पढ़ेंगे यकीनन जो है बुरी नजर जो है हमें और आपको लगेगी। तो मेरे भाइयों, इसका इलाज क्या है? बुरी नजर चाहे इंसान की लगे, चाहे जिन्नात की लगे, चाहे जानवरों की लगे, अब इंसान को नुकसान हो रहा है, माली नुकसान, जानी नुकसान, तो उसका इलाज क्या है? इलाज में सबसे पहली चीज ये याद रखें कि हमें और आपको एहतियात करना है, बचने की जो है कोशिश करना है। उसमें किस चीजों से बचना है? सबसे पहली चीज इजहारे नियामत कम से कम करना है। अल्लाह ने दौलत दी है तो हद से ज्यादा लोगों के सामने दिखावा नहीं करना है। अच्छे कपड़े पहने हैं, हद से ज्यादा लोगों के सामने दिखावा नहीं करना है। अच्छी चीजें खरीदे हैं तो हद से ज्यादा लोगों के सामने दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि दुआओं का इंतजाम करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इजहारे नियामत, नियामतों का इजहार हद से ज्यादा करते हैं तो सामने वाले हसद करते हुए आपको नजर जरूर भी जरूर लगाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्न कुल्ल ज़ी निअमतिन महसूद, हर नियामत वाले से लोग हसद करते हैं, जलते हैं। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो अपनी नियामतों को छुपाने की कोशिश करे। तो मेरे भाइयों, अहले इल्म ने एक मिसाल के जरिए भी समझाया है। वो मिसाल क्या है? हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें से उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके भाइयों ने हसद जलन की वजह से मारना चाहा तो उन्हें कुएं में ले जाकर जो है फेंक दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें वहां से निकाल कर मिस्र का जो है जो खजाना है उस खजाने का जिम्मेदार बनाया। एक वक्त ऐसा आया, तहसाली का वक्त आया, तहसाली का जमाना आया, तो लोग मिस्र की तरफ रवाना होकर गल्ला लेने के लिए जा रहे थे। तो उन्हीं में से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को भेजा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को पहचान लिए। पहचानने के बाद कहा कि तुम्हारा एक और भाई है, उसे भी लेकर आओ। तो लिहाजा वो भाई याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और उनके एक और भाई थे, उन्हें लेकर मिस्र की तरफ जाने लगे। तो अब जो है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नसीहत कर रहे हैं, एहतियात की नसीहत। वो नसीहत क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जिक्र करते हुए कहा कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा, या बनी ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदा, ऐ मेरे बेटों, तुम जब मिस्र में दाखिल हो तो एक दरवाजे से दाखिल ना होना, एक दरवाजे से सब के सब जो है दाखिल ना होना। वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, कि तुम अलग अलग दरवाजों से मिस्र में दाखिल होना। वमा उगनिया अन्कुम मिनल्लाहि मिन शैआ, अल्लाह की तरफ से जो तुम्हें पहुंचने वाली चीज है मैं उसे दूर नहीं कर सकता। इनिल हुक्मु इल्ला ये कि फैसला अल्लाह के हुक्म से होता है। लिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, मेरा भरोसा अल्लाह पर है और हर भरोसा करने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करना चाहिए। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन किराम जिक्र करते हुए कहते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को क्या नसीहत की कि जब तुम मिस्र में दाखिल होना तो अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना। क्यों? इसलिए कि उनके जो बेटे थे नौजवान थे, खूबसूरत थे, तंदुरुस्त थे, ताकतवर थे, तो एक साथ अगर वो दाखिल होंगे तो लोगों की बुरी नजर इन्हें लगेगी। इसीलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा कि जाते हुए अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना। हाँ, अगर आपको बुरी नजर लगती भी है, यानी नुकसान पहुंचता भी है अल्लाह के जरिए, तो मैं उसे हटा नहीं सकता। और याद रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही का फैसला है, यानी जो फैसला होने वाला है अल्लाह ही की तरफ से फैसला होने वाला है। इंसान को चाहिए कि वो किस पर भरोसा करे? अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करे। तो मेरे भाइयों, इंसान को चाहिए बुरी नजर से बचने के लिए सबसे पहले एहतियात से काम ले। इसी तरह बुरी नजर के इलाज में एक चीज है रूहानी इलाज, यानी जो अज़कार, जो वज़ाइफ, जो दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के शर से बचने के लिए, जिन्नात के शर से बचने के लिए, जानवरों के शर से बचने के लिए, मखलूक के शर से बचने के लिए, बुरी नजर से बचने के लिए सिखाई है, उन दुआओं को याद करें। हमेशा आलिम पर डिपेंड ना करें,
خود یاد کریں اور خود جو ہے پڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، استعیذوا باللہ من العین فإن العین حق، کہ بری نظر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک بری نظر برحق ہے، لگنے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں، انسان کو چاہیے کہ وہ بری نظر سے بچنے کے لیے دعائیں یاد کر کے اسے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ ان میں سے ایک دعا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اسے یاد کریں، صبح اور شام جو ہے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نزل منزلا، کوئی آدمی کہیں جا رہا ہے، جاتے ہوئے کسی جگہ رکتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں مکمل کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس کے مخلوق کے شر سے۔ یہ دعا اگر پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لم یضرہ شیء، اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی، ایک دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کوئی چیز جو ہے اسے نقصان نہیں دے سکتی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بری نظر اگر لگ جاتی ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا علاج کرائیں۔ قرآن اور حدیث میں جن چیزوں کا تذکرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، انہیں پڑھ کر دم کروائیں، اور خصوصاً ان میں ایسی آیتیں ہوں جن میں توحید کا ذکر ہے، یعنی ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا جس میں ذکر ہے، ان دعاؤں کو پڑھ کر جو ہے دم کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ اگر شرک والا دم کرتے ہیں، جھاڑ پھونک والا دم کرتے ہیں، تو یاد رکھیں انسان شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا بأس بالرقا لم یکن فیہ شرک، ایسا دم، ایسی دعائیں، ایسے اذکار پڑھ کر دم کرنا جس میں شرک نہ ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے بعض لوگ بری نظر سے بچنے کے لیے، جنات شیاطین کے اثرات سے بچنے کے لیے تعویذ گنڈے لٹکاتے ہیں، پلیدے لٹکاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرقا والتمائم والتولا شرک، بے شک ایسا دم جو جھاڑ پھونک پر مشتمل ہے، ایسے جو ہے تعویذیں جس میں جو ہے شرک بھرا ہوا ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو ہے شرک ہے، جھاڑ پھونک کرنا، تعویذ لٹکانا، پلیدے لٹکانا، یہ شرک ہے۔ یاد رکھیں اس سے انسان جو ہے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس تعویذ سے کچھ دیر کے لیے بیماری دور ہو، اس انسان کا عقیدہ اللہ رب العالمین پر سے اٹھ کر اس تعویذ پر آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جو آدمی تعویذ لٹکاتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ اتنے افسوس کی بات ہے، اتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو نام و نہاد اہل الحدیث ہیں، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جب ہم ان کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے گلوں میں تعویذ نظر آتی ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے، جب ہم انہیں نصیحت کرتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں، جب نصیحت کرتے ہیں شرک ہے تو بڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے بڑوں نے ڈالا ہے، نکالیں گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، بری نظر سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث پڑھ کر جو ہے دم کرنا چاہیے۔ یہ پلیدے، یہ تعویذ وغیرہ انسان کو شرک میں مبتلا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بری نظر سے بچنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھنے کا اہتمام کرے، خصوصاً نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد تین مرتبہ اس کا اہتمام کرے، اور دوسری نمازوں کے بعد ایک مرتبہ اس پڑھنے کا اہتمام کرے، تو انسان پر جادو کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ آج لوگ بڑا پریشان ہیں، عمل نہیں کرتے، نہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نہ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی بیمار ہونے لگتے ہیں یا بری نظر لگنے کا انہیں جو ہے شک و شبہ ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے اتنا بڑا نسخہ آپ کو دیا ہے، اتنا بڑا علاج آپ کو دیا ہے، لیکن آپ اس پر عمل کرنے کے بجائے پریشان ہوئے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے
दम किया करते थे अपने आप पर। उसके बाद जब सूरह फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पूरी सूरत नाजिल हुई, सूरह नास कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास नाजिल हुई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर अपने जिस्म पर जो है दम किया करते थे। तो इससे जादू का असर भी नहीं होता। इसी तरह मेरे भाइयों, सुबह और शाम के अज़कार, सुबह के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआएं पढ़ा करते थे हदीस की किताबों में मौजूद है। शाम के वक्त जो दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे वो दुआ की किताब हदीस की किताब में मौजूद है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम सुबह और शाम की दुआओं को पढ़ने का इंतजाम करें। उससे फायदा ये होगा कि घंटों तक सुबह से शाम तक घर में टेप में मोबाइल में कुरान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अमल करें, इंशाअल्लाह कोई चीज आपको नुकसान नहीं देगी। अमल नहीं करेंगे तो मोबाइल में, टेप में, टीवी में दिन भर जो है कुरान चलाना पड़ेगा। न खुद सुनेंगे न घर वाले सुनेंगे, उल्टा कुरान की बेहुरमती होगी। तो मेरे भाइयों, इसी तरह बुरी नजर से बचने के लिए आयतुल कुर्सी का एहतमाम करें। इसी तरह बुरी नजर से बचने के लिए सूरह बकरा की जो आखिरी दो आयतें हैं आमन रसूल से लेकर आखिर तक, उनके पढ़ने का एहतमाम करें तो इंसान जो है बुरी नजर से अपने आप को बचा सकता है। इसी तरह बुरी नजर से बचने के लिए गुज़िश्ता जुमा एक दुआ मैंने आपके सामने जो है जिक्र की थी, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानि व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिल लाम्मा। ये पढ़कर अपने आप पर दम करे, अपने छोटे बच्चों पर दम करे, बुरी नजर जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसी तरह बुरी नजर से बचने के लिए अल्लाह ने जो नियामतें दी है, इन नियामतों के जवाल से बचने के लिए अल्लाह से दुआ करें। क्या है वो दुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक, ऐ अल्लाह मैं पनाह तलब करता हूँ किसकी? नियामत के जवाल होने से। जो नियामतें अल्लाह ने दी है, इन नियामतों के खत्म होने से ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ। व तहव्वुल आफियतिक, तेरी जो आफियत है उसके हट जाने से मैं जो है पनाह तलब करता हूँ। व फुजाअ निक़मतिक, तेरी अचानक आने वाली सजा से मैं जो है पनाह तलब करता हूँ। व जमीअ सख़तिक, और तेरी हर किस्म की नाराजगी से मैं पनाह तलब करता हूँ। अल्लाह नाराज हो जाए तो इंसान को नुकसान और खसारा उठाना पड़ता है। इस दुआ का एहतमाम करें, मिली हुई नियामतों का ज़वाल इंशाअल्लाह कभी नहीं होगा। इसी तरह मेरे भाइयों, घर से निकलते वक्त दुआ पढ़ने का एहतमाम करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान घर से निकलता है इस दुआ को पढ़ता है, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दुआ पढ़कर वो घर से बाहर निकलता है, काम के लिए जाता है, किसी कहीं भी जो है घर से निकलता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ के जरिए उसको जो है शैतानों के शर से जो है महफूज रखता है। शैतान जो भी नुकसान देने वाला है उस नुकसान से जो है अल्लाह उसे बचाता है। यहाँ तक कि हदीस के अल्फाज है, शैतान दूसरे शैतान से कहता है कि इस बंदे को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जबकि ये दुआ पढ़कर बाहर निकला है। अल्लाह ने इसे हिदायत दी है, अल्लाह ने इसे आफियत दी है, अल्लाह ने इस दुआ के जरिए इसके जो है किफायत कर दी है। छोटी दुआ है, इस दुआ को पढ़कर घर से बाहर निकले, कोई चीज इंसान को नुकसान नहीं दे सकती। तो मेरे भाइयों, ये रूहानी इलाज में दुआओं के जरिए इलाज था। अब आइए मादी तरीके से इलाज कैसे हो सकता है। मादी तरीका यानी जो हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, गुज़िश्ता जुमा मैंने इसकी तरफ इशारा भी किया था। एक सहाबी सहल इब्ने हनीफ रज़ी अल्लाहु अन्हु को जब नजर लगी आमिर इब्ने रबीआ की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? गुज़िश्ता जुमा मैंने आपके सामने बयान किया था, आमिर इब्ने रबीआ को क्या हुक्म दिया था कि तुम वजू करके इस आदमी के जो है जिस्म पर बहा दो। तो इंसान जिसकी नजर लगी हुई है, गुज़िश्ता जुमा भी मैंने इशारा किया था कि अगर आपकी नजर किसी को लगी है, दुआ आपने नहीं दी है, वो कहा कि भाई हो सकता है तुम्हारी नजर लगी, तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि किसी की भी नजर लग सकती है। वो अगर कहता है कि भाई आपने फला वक्त मुझे देखा था, हो सकता है आपने मुझे दुआ नहीं दी थी, नजर लगी होगी आपकी, तो वजू करके पानी दे। वजू कैसे करे? एक पानी का टब रखे, उसमें वजू करने का पानी जो है टब में जमा करे और वो पानी जिस शख्स को नजर लगी है उसके जिस्म पर बहा दे। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काना युअमरुल आइना फयतवज़्ज़उ सुम्मा यग़तसिलु मिनहुल मईन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर लगा
लगाने वाले को हुक्म देते थे कि वो वजू करे, और जब वो वजू करता था तो वजू किया हुआ पानी उस शख्स के जिस्म पर बहा देते थे जिसे नजर लगी है। इसी तरह गुस्ल का भी तज़किरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-ऐनु हक़्क़ुन, बुरी नजर बरहक है, वलौ काना शैउन साबक़ल क़दर, के तकदीर से आगे बढ़ने वाली कोई चीज होती तो वो बुरी नजर होती। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, व इज़स्तुग़सिलतुम फ़ग़सिलू, कि जब तुम्हें गुस्ल करने के लिए कहा जाए तो तुम गुस्ल करो। तो मालूम क्या हुआ, गुस्ल किया हुआ पानी, वजू किया हुआ पानी टब में जमा कर उस शख्स को दे जिसे जो है बुरी नजर लगी है, वो अपने जिस्म पर से बहा देता है तो इंशाअल्लाह बुरी नजर खत्म हो सकती है। तो मेरे भाइयों, यही चंद बातें थी जिन्हें मैं आपके सामने जो है बयान करना जरूरी समझ रहा था। खुसूसन यहाँ के लोग बुरी नजर के मुताबिक जो है बड़ा परेशान होते हैं। परेशानी का एक सबब यह है कि खुद का सही अमल न करना, खुद का कुरान और हदीस के मुताबिक सही अमल ना करना, ये जो है बड़ा परेशान करता है। इंशाअल्लाह आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारो, कोई चीज जो है आपको नुकसान नहीं दे सकती। तो भाई एक दो चीजें मैं आपके सामने जिक्र करके अपनी बात को खत्म करूंगा। बाज लोग कुरान और हदीस के जरिए इलाज करने के बजाय बुरी नजर से बचने के लिए, लोगों की जो है हसद से बचने के लिए क्या क्या काम करते हैं। बाज लोग नींबू मिर्ची वगैरह जो है दुकान पर लटकाते हैं, घरों पर लटकाते हैं या अपनी गाड़ियों पर लटकाते हैं। कितनी वाज़ेह बात है, ये जो है मुशरिक और काफिर करते हैं। लेकिन अफसोस, जिन मुसलमानों का अकीदा कमजोर है वो मुसलमान भी जो है इस तरह का काम करते हैं। अल्लाह ने नींबू मिर्ची खाने और पीने के लिए दिया है, लोग इसे जो है बुरी नजर से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कितने शर्म की बात है। इसी तरह बाज लोगों को देखा जाता है कि वो 4 कुल, आयतल कुर्सी, इसी तरीके से बाज पलीदे अपने घरों में लटकाते हैं। मेरे भाइयों, सिर्फ लटकाने से कोई फायदा नहीं है, उसको जो है पढ़ना चाहिए। ये वही लोग लटकाते हैं जिनका अकीदा कमजोर है और ये सोचते हैं कि ये आयतल कुर्सी, ये चारों कुल हमारे गाड़ी में लगी रहने की वजह से, हमारे घर में लगी रहने की वजह से, हमारे जो है दुकान में लगी रहने की वजह से बुरी नजर नहीं होगी या जो है बरकत होगी इसके सबब से। याद रखें, सिर्फ लटकाने से कोई काम नहीं होगा, उस पर जो है अमल करना होगा, उसे पढ़ना होगा, तब जाकर जो है किसी की बुरी नजर भी नहीं लगेगी और जो है इंशाअल्लाह बरकत का वो जो है सबब बनेगी। इसी तरह मेरे भाइयों, बाज लोग आंख की शक्ल का बना हुआ एक बड़ा सा तबका जो है अपने घर के सामने जब नया नया घर बनाते हैं तो लगाते हैं कि देखने वाला जो है कोई बुरी नजर न लगाए। कितने शर्म की बात है कि हमारे मुसलमान भी ऐसा काम करते हैं। इसी तरह बाज जगह ये भी देखा जाता है कि जो खाने और पीने की चीजें हैं, अंडा और इसी तरीके से कोलसा वगैरह जो भी है, नजर लगने वाले के जिस्म पर जो है ऐसा फेरते हैं, फेर कर गांव के बाहर या इसी तरीके से गली के बाहर ले जाकर फेंकते हैं। और कौन कर रहे हैं? वो हमारे मुसलमान कर रहे हैं। किनका तरीका है? वो गैरों का तरीका है। कितने अफसोस की बात है। हमारे मुसलमानों को इन शिरकिया, कुफरिया, बिदिया आमाल से बचने की जरूरत है। और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस में जिन आयतों को, जिन दुआओं को, जिन हदीसों को पढ़ने का हुक्म दिया है, इन्हें पढ़कर इंशाअल्लाह हम बुरी नजर को खत्म कर सकते हैं। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे।